फेस नहीं आ रही जी हटा दो इसको ना हटा दो Thank you, Shishika. Well done. Morning requires secondary discharge in the evening, and 3 days later you can fly out of the country. And that is what we call as a normalization of hysterectomy, and something we need to understand. Even if we do a laparoscopic hysterectomy, at the end of the day it is a major procedure and we cannot take it lightly. The second problem is health providers training. This is something what I see next please clapping Sue clapping Sue. Okay. Financial guideline of the school standard Ludhiana, Punjab on this 10th day of September 2002. Dr. Atul, Dr. Vishal, please come on the stage, sir. Dr. Sushma Chandra. He published Intrauterine Adhesions, Asherman syndrome. There is an overview of hysteroscopy with Dr. Osama Shauki, wherein we have incorporated many videos, and we have dealt from the basic to the techniques in detail. And then other is a step-by-step access to hysteroscopy. This is the book. This is for the beginner, where we have mentioned each and every small points a beginner should take care of, and also the challenging cases we have discussed, so that we don't commit mistakes. So with this, I conclude my talk, and I'm not going to repeat what I have already said, but I just want to say it all messy: the hair, the bed, the word, the heart, life. But with good patient selection, counseling, and surgical technique, we can certainly unmess the mess of Asherman syndrome. Thank you for your patient hearing. I'd like to ask you that you said that relook hysteroscopy after 2 to 3 weeks now, according to the latest studies. And after how long can the patient plan pregnancy after that? Yeah. through experience, haltingly and humiliatingly, like the tennis player and the oboist and the guy who fixes hard drives. We need practice to get good at what we do. But there is only We planned some regional conferences, and every regional conference was different. Like, we've already had an e-endoscopy event where only women operated. And that had a reason, because given the number of women we have in the profession, the number of women at leadership positions are much less. And there are various reasons for that. And while this has been done months before, when IG had a lady president, I thought it was important for the men to take a step back and get the ladies forward. We similarly have a Yuva event coming up where only endoscopies below 40 will operate, and we have an abundance of talent in the country, and especially among the young endoscopists, and it is, I would say that we get breathless watching them that where they would go in another 10 years to 15 years. Also, we looked at states where IHG states, we leave that for the inauguration, I guess, which immediately follows. We've seen a lot of surgeries yesterday. So, I am moving a little away from surgeries, and it is said that it takes around 3 years, your training period. Nice, that's more like having men in the audience. Yes. I
Dr. Nitin Shah. Sir, camera please. Well done. Dr. Sushila Singh. Wait, sir. Thank you. Left. The ladies and no, we have one more. Dr. Ajay. Dr. Ajay. Okay. Neat Grover. Wait, ma'am. Wait, sir. Camera. Nice, so getting two. You can take two. Yes. Dr. Amit is here. I can see him. Dr. Amit. Well done. Yes, ma'am. Please. Dr. Richa Sharma. She's not there. Okay, Dr. Seema. Thank you. Varied in different states from 2 per thousand to 63 per thousand. Among the large states, Tamil Nadu and Haryana had pretty low rates. Andhra Pradesh had the highest rate, followed by Telangana and then Karnataka and Punjab. Andhra Pradesh and Telangana had 63 and 55 hysterectomies per thousand women, Karnataka had 29 per thousand, and Punjab had 23 per thousand. The median age at hysterectomy was 42 years. 36% of women had had the operation before the age of 40 years, and it was high in Andhra Pradesh and Telangana. Lower hysterectomy rates were in more educated, and which again goes to the theory of pragmatic agency, that the poorer the women are, who are daily wage earners or who are in unorganized sector, they would want a permanent solution. There was also higher rates of hysterectomy in the more wealthy women and more women who had insurance. ये कॉन्फ्रेंस है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का होता है। ये बहुत लोग उसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। ये मतलब पहले जो सर्जरी होता था पेट चीर के लंबा काट के होता था। अभी ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट में हम 3-4 छेद करते हैं, उससे ऑपरेशन होता है। इससे पेशेंट को ये फायदा होता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कामकाज में वापस जा सकते हैं। तो पंजाब में ये सर्जरी उतना ज़्यादा नहीं होती है, और ये सर्जरी ज़्यादा से ज़्यादा ये गायनेकोलॉजी में गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसके लिए पंजाब में हम ये जो एसोसिएशन है इसका पंजाब स्टेट का चैप्टर बनाया, और पंजाब में ये पहला कॉन्फ्रेंस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ये एंडोस्कोपी सीखे, एंडोस्कोपी ट्रेनिंग के लिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्कोपी करें और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिले और फायदा हो। जो इससे आपको ये टाइम कितना लगता है? ये टाइम ओपन सर्जरी में जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। कभी कोई भी सर्जरी जब भी कोई नया जी सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल गनात्रा है। मैं IIG का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी पंजाब टीम को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइव से अपनी वर्कशॉप करी और ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनी एंडोस्कोपी एक नेशनल बॉडी है जो गायनेकोलॉजिस्ट को एंडोस्कोपिक ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, एडवांस ट्रेनिंग देते हैं और रोबोटिक ट्रेनिंग भी देते हैं, कैडेवर वर्कशॉप की ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं इस पूरी टीम सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर पंडित पयास्कर, मैं IIG
जैसे 12 सर्जरी, लाइव सर्जरी या बहुत सारे पंजाब के जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उनको अच्छा सीखने के लिए मिला। और जो नया साइंस है एंडोस्कोपिक सर्जरी का, जिसमें दूरबीन वायरस। मेरा नाम डॉक्टर मनमीत गुप्ता है। मैं एसपीएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करती हूँ और फिर इनफर्टिलिटी जो भी IVF की कराना है वो कितनी जानी है, तो बहुत ही सक्सेसफुल लुधियाना में काम करती हूँ हॉस्पिटल में। और मैं फर्स्ट IHI सेक्रेटरी हूँ और मैं आपके कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर वीनस बंसल है। मैं क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। ये कॉन्फ्रेंस IAG की जो शुरू हुई है, ये लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन वाली सर्जरीज के साथ में रिलेटेड है। धीरे धीरे हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोग इसके लिए ट्रेन हो जाएं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के टाइम पे जितने अच्छे से और जितनी ज़्यादा। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर, मैं कंसल्टेंट हाँ फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ IAG ਇੱਕ सोसाइटी है जिहदी पंजाब की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लुधियाना च हो रही है दीवाना च, और ये अंदर इंडिया के नामी ग्रामी सर्जनस आए ने अपना टैलेंट दिखान। वध तो वध अच्छी टेक्निक्स नाल कल सर्जरीज हुई ने, अज अकैडमिक सैशनस हो रहे हैं। ये अंदर दूरबीन नाल किवें सर्जरीज होंदियां ने औरतां। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज साडे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज पंजाब चैप्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। एक्सलेंट प्रोग्राम टाइप किए जाते हैं, ऑपरेशन बारे अपडेट किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया सारी बनाई आई है जो भी लेटेस्ट हो रहा है वो जो डॉक्टर्स टीच किया जा रहा है, स्किल्स एनहांस किया जा रहा है। सो वेलकम ऑन, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के टैक्नोलॉजी नवी तुसी लॉन्च की है सर्जरी वास्ते की एक नवा तकनीक की होगी इस तरह के जानते हैं पंजाब सूबे अजे जी जी कि अज जो नवा सर्जरी का प्रोजेक्ट लॉन्च होया की कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा और ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट गायनी सर्जरी करें। आपको पता है कि दूरबीन वाली सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल कॉमन है और इससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पर इसमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये हमने एक इनिशिएटिव किया है कि हम सबको ये सर्जरीज बेटर करने के लिए और इसी पंजाब का पहला चैप्टर इंडियन चैप्टर ऑफ इंडियन एसोसिएशन गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी। मेरा नाम ऐश्वर्या जना है एंड हम एक्चुअली चंडीगढ़ से हमारा क्लाउड किचन एंड बेकरी है इमरजेंसी एंड द ब्रेड क्रॉप्स। तो हम बस यहाँ पे वी वांटेड टू कम थोड़े एक्सप्लेन करिए क्योंकि जैसे खाना किसे नहीं पसंद, कुकीज चिप्स जो हमारे ब्रेड्स होते हैं। सो वी जस्ट ट्राई कि हम प्रमोट करें अच्छे खाने को, अच्छे रियल इंग्रेडिएंट्स को। तो बस हम वही प्रमोट करने आए हैं यहाँ पे। जो आते क्या जो नवा सब्जेक्ट जो रिलीज हुआ है इसके बारे में क्या खाने के बारे में ये इसका जो सर्जरी का सब्जेक्ट जी जी फर्टिलिटी सेंटर लुधियाना अज जी कॉन्फ्रेंस इतने हो रही है, ये बहुत ही प्रेस्टीज से प्राइड की गल है पंजाब वास्ते कि गायनी लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन राही करन जाने वाले ऑपरेशन जोड़े होंगे हैं उन्होंने मुतालिक ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। अजकल असी देखा है कि इवन कॉम्प्लीकेटेड सर्जरी बड़े बड़े ऑपरेशन चाहे वो ट्यूमर्स हो, फाइब्रॉइड्स हो या कैंसर हो, ये सारे ऑपरेशन ही हो या दूरबीन के राही करन की जी प्रणाली है वो बहुत विकसित हो चुकी है। जो दूरबीन ऑपरेशन होंगे किन्ने टाइम तक वो कंप्लीट हो जाता है?